Hello students of class 7. Welcome back in my video number 39. As you know that we were on chapter number 16, forest product. We have completed our short question answers. Now I will continue your long question answer. Open your page number 180. Here is exercise D. Answer these questions in detail. Your first question is, explain the role of forest in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Hopefully you will have the long question answer. Give the heading of long question answers. Okay, this is your first question. Explain the role of forest in maintaining balance in between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Write the answer from here. Forests are called green lungs. This is because plants in forest release oxygen through the process of photosynthesis and help in providing oxygen to animals for respiration. Plants consume carbon dioxide released by the animal. In this way, plants help in maintaining a balance of oxygen and carbon dioxide in atmosphere. This is your answer number 1. Okay students, come to the next question. Question number 2. What are the harmful effects of deforestation? What are the harmful effects of deforestation? Give the heading of harmful effects of deforestation. Loss of forest is serious for the following reasons. Number 1. The demand for timber, pulp, wood and hardwood for furniture is rising globally. Long-term supplies are threatened. Number 2. Deforestation increases global carbon dioxide level, which may have long-term effects on the global climate. Number 3. Destruction of forest will lead to soil erosion. This can remove the topsoil and leave ground unsuitable for growing crops. Come to the next page. Point number 4. Forests have diverse wildlife communities. Their destruction will lead to extinction of various forms of life. ठीक है, these are the 4 points. What are the harmful effects of deforestation? ये आपका फर्स्ट पेज, इसमें 3 पॉइंट्स हैं and the 4th point is here. Okay, come to the question number 3. Question number 3 is, why are forests very important for us? इसका आंसर जो है वो हमारे बुक में है. पेज नंबर आप खोलिए. दिस इज पेज नंबर 171, फर्स्ट पेज. ओके, अब ये इसमें आपने देखा है फर्स्ट पैराग्राफ ही आपका है. इसमें से सिर्फ हमने ये हेडिंग डालनी है, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट.
उसके बाद वी विल कंटिन्यू इट फ्रॉम हेयर. सेकेंड रॉ है आपकी. फर्स्ट पॉइंट, trees purify the air by absorbing carbon dioxide, releasing oxygen while making food. Therefore, a large patch of forest maintains the climate balance of a large area. नंबर 2 आप देखेंगे, सेकेंड पॉइंट है आपका, फॉरेस्ट ऑल्सो रेगुलेट अर्थ्स टेम्परेचर एंड द वाटर साइकिल. कम टू द थर्ड पॉइंट, a forest conserve and protect the biodiversity. It provides home and protection to wildlife. फोर्थ पॉइंट आपका, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल एरोजन एंड फ्लड्स. बस ये इतना ही लिखिएगा. फिफ्थ पॉइंट आपका, टिम्बर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोर देन 1,000 स्पीशीज ऑफ ट्रीज सच एज साल, टीक, यू कैन राइट मोहागनी एक्सेट्रा. यहाँ तक लिख लीजिए. चलें, ठीक है. ये आपके 5 पॉइंट्स. कम टू द नेक्स्ट पेज, 172. सिक्स्थ पॉइंट आपका, we get fruits from forest trees like apple, orange, mangoes. 7 point, tree help to purify water in the soil. 8th point आपका, यहाँ से लिखेंगे हम, wood is still the most important fuel used for cooking. इस पिक्चर के नीचे आ जाइए. 9th point है आपका, the plants having medicinal value are found in forests. Like, ये आप यहाँ आ जाइएगा इसमें, like नीम, आंवला, यूकलिप्टस, एलोवेरा एक्सेट्रा. ये आपके 9 पॉइंट्स हैं जिन्हें आपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये. ठीक है, मैं एक दफ़ा आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा. ये आपने इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की हेडिंग डाली एंड यू विल राइट ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम हेयर 1, 2, 3, 4 and 5 फ्रॉम दिस पेज 171 एंड 6, 7, 8 and 9 पॉइंट फ्रॉम 172. ठीक है, ये आपने पॉइंट्स में लिखने हैं. पॉइंट्स लिखने के बाद, एक पॉइंट लिखने के बाद एक लाइन छोड़िएगा, फिर उसके बाद आप पॉइंट लिखिएगा. ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिएगा. ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन हाउ फूड चेन टेक प्लेस इन फॉरेस्ट. फूड चेन टेक प्लेस इन फॉरेस्ट. ठीक है, अब आ जाइए पेज नंबर, इसका आंसर बुक में ही है, पेज नंबर 173 खोलिए. ठीक है, ये देखें लास्ट पैराग्राफ है. ठीक है, ये लॉन्ग 4 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, इन एवरी फॉरेस्ट देयर आर मैनी फूड चेन्स. यहाँ तक लिखने के बाद लास्ट लाइन में आ जाइएगा. इट बिगेन्स विद एन एनर्जी सोर्स विच इज़ यूजुअली द सन. ठीक है, एक लाइन आपने यहाँ से लिखी, इन एवरी फॉरेस्ट देयर आर मैनी फूड चेन्स. फिर आपने इस लास्ट लाइन में आए, इट बिगेन्स विद एन एनर्जी सोर्स विच इज़ यूजुअली द सन. अब उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, दैट इज़ 174. लिखना शुरू करेंगे हम यहाँ से. ये सेकंड लाइन से. ठीक है, प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे आर एबल टू यूज लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूस देयर फूड, शुगर, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो दे मस्ट ईट प्लांट्स एंड और अदर एनिमल्स फॉर फूड. दे आर कॉल्ड consumers.
देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स. नंबर 1, ये आपने नहीं लिखना, ठीक है, आप यहाँ से लिखेंगे हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स. नंबर 2, कार्निवोर्स. सिर्फ इतना ही लिखिएगा, कार्निवोर्स. ठीक है. अब कार्निवोर्स में क्या है कि देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ कार्निवोर्स. Carnivores that eat herbivores are called a secondary consumer. यानी ए जिसका जो कार्निवोर्स लिखने के बाद आपने नंबर, फिर आप ए लिखेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, बी लिखेंगे टर्शरी कंज्यूमर्स, सी लिखेंगे स्कैवेंजर्स. और इनके आगे आपने, जैसे ये लिखा है आपने, इसके आगे आप लिखेंगे कार्निवोर दैट ईट हर्बीवोर और that eat herbivore, carnivore that eat other carnivore, tertiary consumer के साथ, और carnivore that eat dead animals bodies. ये आप पहले आपने लिखना है कार्निवोर. कार्निवोर्स की तीन पार्ट्स हैं आपके. ए है सेकेंडरी कंज्यूमर, बी है टर्शरी कंज्यूमर, सी है स्कैवेंजर्स. सेकेंडरी कंज्यूमर के आगे आप लिखेंगे कार्निवोर दैट ईट हर्बीवोर. टर्शरी कंज्यूमर के आगे आप 9 में लिखेंगे कार्निवोर दैट ईट अदर कार्निवोर. स्कैवेंजर में आप लिखेंगे कार्निवोर दैट ईट डेड एनिमल बॉडीज़. मैं देखती हूँ अगर किसी ने कॉपी में लिखा हुआ. अच्छा खैर, नंबर 3 पॉइंट इसका है आपका, दैट इज़ डीकम्पोजर्स. ये डीकम्पोजर्स आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है. और उसके बाद आप लिखेंगे बैक्टीरिया एंड फंजाइज दैट फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स. ठीक है. तो ये आप नंबर 3 पे पहले आप डीकम्पोजर्स लिखेंगे, फिर उसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिएगा. ये आपका है आंसर नंबर 4. अच्छा, come to the question number 5. What are the various steps that we can take to conserve our forest? ये देखिए, ये आपका आंसर इस कॉपी में है. आपने हेडिंग डालनी है स्टेप टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट. नंबर 1, पीपल शुड शो देयर पार्टिसिपेशन इन सेविंग द फॉरेस्ट बाय प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कटिंग ऑफ ट्रीज. प्लांटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी इंक्रीज्ड. बाय कटिंग ऑफ ट्रीज़ के बाद सेकेंड पॉइंट है आपका, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ शुड बी इंक्रीज्ड. नंबर 3 है रेट ऑफ एफोरेस्टेशन मस्ट बी मोर देन दैट ऑफ डेफोरेस्टेशन. यानी दरख्त लगाने ज़्यादा लगाने चाहिए बनिस्बत इसके कि उनको काटा जाए. नंबर 4 है गवर्नमेंट शुड टेक लीगल स्टेप्स टू कैच दीज वुड स्मगलर्स. नंबर 5 है यूज़ रिसाइकिल पेपर टू रिड्यूस द कटिंग ऑफ वुड. नंबर 6 है आपका एनकरेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा. नंबर 7 है आपका प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम फाइन mining and other natural calamities.
ये आपका इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का, इसको आपने पॉइंट्स में लिखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं आपको दिखा रही थी, बता रही थी बुक में, वो ये आप लिखने के बाद यहाँ से मैंने आपको बताया था ना कि ये आप सेकेंडरी कंज्यूमर जब लिखेंगे तो इसके आगे लिखेंगे कार्निवोर ईट हर्बीवोर, ठीक है ना। और फिर आप लिखेंगे टर्शरी कंज्यूमर, तो इसके आगे आप लिखेंगे कार्निवोर ईट कार्निवोर। स्कैवेंजर्स लिखेंगे तो लिखेंगे कार्निवोर ईट डेड मटेरियल। और लास्ट में आप लिखेंगे डिकम्पोजर्स। ये मैं लास्ट क्वेश्चन भी आपको शो कर देती हूँ, ये वाला 5 वाला, एक्सप्लेन हाउ फूड चेन टेक प्लेस इन फॉरेस्ट। ये इस तरह लिखना है। ठीक है, यहाँ लिखने के बाद ये लिखना है। Okay, come to the last question, that is explain the interdependence of plants and animal in forest ecosystem। इसका आंसर जो है वो हमारे पास बुक में ही है। पेज नंबर खोलिए 173। ये देखें, इसमें यहाँ हेडिंग है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट। ये आपका स्कूलॉन्ग 6 का आंसर है। ठीक है, ये आपने हेडिंग डाली, हेडिंग डालने के बाद आप लिखना शुरू करेंगे यहाँ से। ऑल लिविंग बींग्स बोथ एनिमल एंड प्लांट्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर इन अ फॉरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ डियर नीड्स ग्रास टू लिव ऑन and a lion needs deer to live on. In this example, a deer is directly dependent on grass and lion's dependence on grass is indirect. Plant provide food, shelter and nesting sites for the animals. On the other hand, plants are also dependent on animals for nutrients and pollination. ये pollination तक जो है ये आपने लॉन्ग 6 का आपका आंसर है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, पेज नंबर 173। ये हेडिंग है, यहाँ ऑल लिविंग थिंग से लेकर पॉलिनेशन तक आपका इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये जो पेज नंबर 175 है, इसके ऊपर ये एक पिक्चर बनी हुई है, फिगर 16.2 फूड वेब बना हुआ है ये। ठीक है ना, ये जो है ना ये शो करता है इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, अब ये चीज़ सारी पिक्चर्स बनाना अगर आप लोगों को मुश्किल लगती हैं, ऑब्वियसली ज़रा मुश्किल हैं थोड़ी सी, लेकिन खैर अगर बना सकते हैं वेरी वेल एंड गुड। इनके नाम मैंने लिख दिए हैं, आप जो है वो इनको आप बनाकर चाहें तो नाम लिख लें, नहीं बना सकते ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, जस्ट राइट द नेम्स एंड मेक दीज एरोज़ लाइक, जैसे भी ये एरोज़ बने हुए हैं ना, ये पूरा मतलब एक वेब जो बना हुआ है ये आपने इस क्वेश्चन के अंदर बनाना है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखें कॉपी में इस तरह बनवाया था हमने। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी बना सकते हैं कि सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ कर दें और नाम लिख दें खाली, लेकिन अगर आप इनकी पिक्चर्स बना सकते हैं और इसी तरह बिल्कुल इनको पिक्चर्स बना के इनके नाम लिख दें तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना, तो बट इट्स अप टू यू, जिनको समझ में आ जाए ऐसे बना लें, नहीं तो खाली इस तरह भी बन सकता है ये। ठीक है, ये मैं आपको शो कर देती हूँ। ये इसका आंसर लिखा हुआ है इस पेज पे, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है ना, पॉलिनेशन तक ऑल लिविंग बीइंग से, और ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, यहाँ आपके ये पूरे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमने ये एक्सरसाइज सब कर ली हैं जी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का। अब आप लोगों ने लर्निंग करनी है साथ साथ मेरे, और मैं आपको ऐसा इसमें लर्निंग करेंगे हम लोग, और इंशाल्लाह फिर मैं आपको
टेस्ट वगैरह आपसे लूँगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट वर्क और टेस्ट इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।